Good morning, everyone. I hope you all are fine. Today we will study the poem Rain on the Roof, which is given in ninth class English syllabus. So let's start. The poem Rain on the Roof is written by Coates Keene. And in this poem, the poet is lying on his bed in his cottage, and he listens to the voice of the rain, and then he gets he because of the voice of the rain, he just goes into the past, and this voice of the rain makes him feel all the uh, surroundings so good, and he just reminds of his mother and how she used to love him and his siblings. And this voice of rain is the poet uses so many metaphors in this poem, and by the help of those metaphors and other poetic devices, he makes the poem so beautiful, and it is a lyrical poem. So let's start. The poem starts with the sound of the rain, that when the rain showers on the tin roof, there is the poet has a cottage, and the roof is made of tin. So when the rain showers on his roof, which is made of tin, it makes a strange kind of sound, and when the poet listens that sound, he feels very strange, and all those sounds he thinks that there was a darkness all around, and when the rain showers, it removes all the darkness. And how does the poet feel? We will study. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Means, now the poet is saying, when the humid shadows hover over the starry sphere, that he says that when there was humidity all around, there was darkness all around, suddenly it rained, and you all know that whenever there is humidity, there is darkness in the sky, तो वो सब जो होते हैं वो बादलों की फॉर्म जो है वो पानी के रूप में नीचे आती है, that is called rain. So the poet also says, when the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. देखो कितना अच्छा खूबसूरत तरीके से रेन को इसने बताया है, that जब ये ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, then it takes the form of clouds, and the clouds there is shower, and जब वो रेन आती है तो क्या होता है, when the humid shadows over, जब हर तरफ अंधेरा छाया होता है, and over all the starry spheres, पूरे आसमान में स्काई में starry spheres means पूरा आसमान जो है, पूरा स्काई है, that is covered with humidity, that is covered with shadows of, means that is covered of clouds. And the melancholy means there is sadness all over, and darkness को नेगेटिव हम वैसे भी नेगेटिविटी से ही कंपेयर करते हैं. इट सिंबलाइज द मेलनकली. ये डार्कनेस जो है वो एक ग्लूमनेस लिए होती है, एक नेगेटिविटी लिए होती है, तो उसको वो कहता है. एंड द मेलनकली डार्कनेस, जो उदासी भरी अंधेरा है, दैट जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो बिल्कुल अचानक से मानो रो करके रोता है, तो पानी होगा, मीन्स ऑफ कोर्स रेन होगी, तो रेन जो है टीयर्स के फॉर्म में निकल रही है. मीन्स जो सारी डार्कनेस है वो पूरी डार्कनेस है, दैट इंक्रीज सो मच, दैट इतनी ज़्यादा डार्कनेस, इतनी ज़्यादा मेलनकली, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि वो रेन के फॉर्म में नीचे बादलों से बरसने लगी. When the humid shadows hover over the starry spheres, यानी जब सब तरफ ह्यूमिडिटी थी और बादल थे बहुत सारे, तो वो स्टारी स्फीयर्स मीन्स जो स्काई है वो, एंड द मेलनकली डार्कनेस, और वो सारी जो डार्कनेस उदासी से भरी हुई थी, दैट जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उस वजह से जो बारिश है वो होने लगी. एंड व्हाट अ ब्लिस to press the pillow of a cottage chamber bed. Means now here the poet is describing that he is in his cottage and lying on the bed, और वो कहता है what a bliss to press the pillow, कि कितना bliss है, blissful है, he is enjoying the rain, and he is thinking कितना अच्छा feel हो रहा है, he is blessed with this thing, that he is listening to the rain and lying on his bed in his cottage chamber, और वो वहाँ पर आराम से अपने पिलो पे लेट करके वो बारिश की आवाज़ को सुन
and lie listening to the pattern of the soft rain overhead. और वहाँ लेटे हुए वो सुन रहा है वो जो रेन है उसके सर पे, यानी उसकी जो छत है, उसकी जो रूफ है दैट इज मेड ऑफ टिन, उसकी वजह से वो किस तरीके से पानी जब उस पर बरस रहा है तो वो कैसा साउंड क्रिएट कर रही है. सो ही थिंक्स कितना अच्छी ब्लिस है, कितनी ज़्यादा एंजॉयमेंट है, कितना ज़्यादा खुशी उसको मिल रही है ये सब करने में, कि जब वो सुनता है उसकी आवाज़ तो उसको ये ब्लिस टाइप में महसूस होता है, जैसे मानो उसके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा एंजॉयमेंट हो. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर्न ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी उसके सर पे, उसके छत पे जो बारिश है वो होती है तो उसकी सॉफ्ट वॉइस को सुनना उसे बहुत ही अच्छा लगता है और ये उसको एक प्रकार की बहुत अच्छी फीलिंग देती है. नेक्स्ट स्टैंजा. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart, means every tinkle on the shingles has an echo in the heart, means जब हर एक बूंद पानी की जैसे ही टप टप करके उसकी छत पे गिरती है, that every drop of the rain, जब वो गिरती है उसके ऊपर टिन की शेड पे तो फिर वहाँ से एक इको साउंड आता है, वहाँ से एक इको का साउंड आता है, एक साउंड आता है जो कि उसको उसके मन में बिल्कुल बस जाता है, उसके मन में खुशी देता है, वो साउंड उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे एंजॉय करता है. सो एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू द बिजी बीइंग स्टार्ट, और जब वो उसको देखता है तो वो कहता है एट 1,000 ड्रीमी फैंसीज, मीन्स हजारों उसकी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं. 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, 1,000 recollections weave their air threads into the roof as I listen to the pattern on the rain upon the roof. Means यहाँ पर कोई कहता है every tinkle on the shingle has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into the busy being start. And तो ना जाने कितनी पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो जाती हैं and 1,000 dreamy fancies, ठीक है, recollection फैंसीज करता है वो बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज, यानी ड्रीमी फैंसीज का मतलब है वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इमेजिन करने लगता है. ही स्टार्ट्स इमेजिनिंग मैनी थिंग्स and 1,000 dreamy fancies into his busy being start, means there are lots of thoughts in the poet's mind, और उन इतने सारे थॉट्स के बीच में वो कुछ बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करने लगता है. एंड 1,000 रिकलेक्शन होता है पुरानी यादें, मीन्स जब उसको बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शन, बहुत सारी हजारों यादें उसके माइंड में आती है. रिकलेक्शन व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो वो सभी बातें उसके माइंड में आती हैं. मीन्स जस्ट लुक एट द पावर ऑफ द रेन, कितनी पावरफुल है रेन, कि जब पोएट उस रेन को वो रेन होती है तो रेन होने की वजह से पोएट यादों में खो जाता है. मीन्स इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द नेचर दैट कैन गिव यू प्लेजर. तो आगे पोएट कहता है एंड द 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इन द बुक. एयर थ्रेड्स मीन्स अभी नाउ द पोएट कहता है द पोएट सेज दैट वीव देयर एयर थ्रेड्स इन द बुक, कि वो उसके माइंड में बहुत सारी इतनी इमेजिनेशन आती थी, पुरानी यादें आती हैं. जैसे मानो हम कोई धागे से अगर कुछ बुनते हैं, बुनाई वगैरह करते हैं तो कितनी सारी चीज धागे मिल करके, कितने सारे थ्रेड्स मिल करके तब एक चीज तैयार होती है. इन द सेम वे द पोएट इज हैविंग सो मेनी ड्रीमी फैंसीज एंड सो thousands of recollections in his mind when he listened to the patter on the roof of the rain upon the roof. जब वो सुनता है उस साउंड को जो कि उसका रेन की वजह से उसकी रूफ पे होता है, उस साउंड को, उस रेजोनेंस को सुनता है, देन ही फील सो ब्लेस्ड कि उसको पुरानी यादें भी होने आती हैं, साथ ही साथ में वो कितनी सारी फैंसीज करने लगता है. सो लुक एट द पावर ऑफ द रेन. Now in the memories comes third stanza says that now in the memory comes my mother as she used is years ago to regard the darling rivers at the left them, that she left them till the dawn. Means अब इसमें कुछ बताता है that now in the memory comes my mother. Now when the poet first in the first stanza the poet described the beauty, the power of the rain, the beauty of the formation of the rain, कि किस तरीके से रेन जो है वो हुई. तो उसने शुरुआत में हमें वीडियो में ये बताया कि रेन की जो किस प्रकार से रेन फॉर्म होती है, किस तरीके से रेन होती है वो बताया. एंड देन he is enjoying the rain. Later he had so many fancies. After
मदर की याद आई, देन शी हाउ शी यूज्ड टू लव हिम एंड हिज सिबलिंग्स, किस तरीके से वो उसके छोटे भाई बहन को और उसको उसके भाई बहन को उसको प्यार किया करती थी एंड क्या था वो. Then he says that now in the memory comes my mother, she as she used in years ago means बहुत सालों पहले उनकी मदर को किस तरीके से केयर किया करती थी, वो सब बातें उसकी याद में आती हैं. To regard the darling rivers and she left them till the dawn means जब उसकी मदर जो है उनके डार्लिंग रिवर्स मीन्स जो बच्चे हैं पोएट एंड हिज सिबलिंग्स उन सब लोगों को किस तरीके से सुलाती थी सोने से पहले और किस तरीके से उन्हें प्यार करती थी, वो सारी चीज़ें पोएट के माइंड में आती हैं और पोएट उन सभी चीज़ों को याद करता है. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain. Now the poet says, "Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain." Means the poet is feeling his mother. He is feeling कि उसकी mother का जो touch है, उनका जो love है, उसको feel करता है. Her fond look on me और वो देखता है उसकी याद करता है उसकी mother उसको किस तरीके से देखा करती थी, किस तरीके से प्यार किया करती थी. As I listen to this refrain means as I listen to this refrain. जैसे जैसे मैं इस refrain means the sound of music. जैसे ही मैं poet कहता है that as he listens the music of the rain, as he listens the rain, he just is reminded of his mother and her look and everything of her, and which is played upon the shingles by the water of the rain, by the patter of the rain means अभी कहता है जैसे ही ये poet सुनता है म्यूजिक को रेन के तो फिर से उसको उसकी यादें आने लगती हैं पुरानी और वो सब ऐसा फील करता है. ओके, so it was your poem by Court Skinning, and in this poem you are described the power of the rain कि रेन जो है वो किस तरीके से पावरफुल है. अभी now we will discuss some questions related to the poem. So there may be some questions that कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. You may be asked, describe the weather just before the rain starts. Weather कैसा था जब आपकी रेन की यहाँ पर रेन स्टार्ट हुई, तो of course weather इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है as it is described in the poem that रेन होने से पहले weather कैसा है भाई, starry night है. Then humidity is all around. Humidity is all around. Humidity है हर तरफ. So you can say as described by the poet, the weather was before the rain. The weather before the rain is humid and it is dark, and the starry night sky, in the starry night the sky is covered by thick clouds just before it begins to rain. Means सब तरफ बादल हैं और रेन होने से पहले जो है यहाँ पर डार्कनेस है, इस तरीके से वहाँ का वेदर है. सेकंड क्वेश्चन आपका हो सकता है, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन इट रेन्स. जब रेन होती है तो पोएट जो है वो क्या करना चाहता है. व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई स्नगली इन द कॉजी कॉटेज. देखो सबसे पहले इसमें देखा है जब रेन हो रही है तो पोएट जो है वो बड़े आराम से अपने कॉटेज में चैम्बर बेड पे लेट करके इसको सुनना चाहता है. सो द पोएट वांट्स टू जस्ट ले डाउन हिज बेड एंड जस्ट लिसन द म्यूजिक ऑफ द रेन. ठीक है. Third question, according to the poet, what is the nature's mood in rainy darkness? Nature का क्या mood है इस darkness में, nature किस type से mood है nature का. The poet shows the darkness to be in melancholy or sad mood. Of course यहाँ पर दिया था melancholy darkness means उदासी भरा darkness, उदासी भरी जो उसका mood है जो इसमें दे रखा है. अब उदासी है जब आप उदास होंगे रोते हैं जैसे कि जनरली वीक्स इसमें भी दिया हुआ है. तो जो मूड है दैट इज टोटली नेगेटिव एंड डार्कनेस की वजह से मेलंकोली मींस वो बिल्कुल उदास है एंड दैट्स व्हाई इट जेंटली वीप्स और जब वो व्हेन इट वीप्स इट रेन्स. ओके, सो इट वाज द मूड ऑफ द नेचर. How is the mood of the poet is contrasted with the mood of darkness. पोएट का जो मूड है वो नेचर की मूड से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है. व्हाई? बिकॉज द मूड ऑफ द नेचर एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. उसमें क्या था इन दिस क्वेश्चन वी डिस्कस्ड दैट नेचर का जो मूड है वो बिल्कुल डार्क
नेगेटिव शेड लिए हुए है और इसी वजह से वो रोता है तो बारिश होती है, बट द मूड ऑफ द पोएट इट इज टोटली डिफरेंट. ही जस्ट वांट टू लाई एंड एंजॉय द रेन एंड द नेचर, वो ये सब करना चाहता है. तो इसके अलावा वो अपनी रिकलेक्शन कर रहा है एंड देयर आर मैनी फैंसीज, तो उसका जो मूड है पोएट का दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मूड ऑफ द नेचर. Now, there will be one more question. There may be one more question. That is the rain referred to in the poem a heavy downpour. तो क्या बहुत ज़्यादा बड़ी भारी मात्रा में बारिश होती है, heavy downpour है? No, as you have we have discussed, no, there is nothing like a heavy downpour. There is very gentle downpour, gentle rain है वो हो रही है, gentle बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश हो रही है. And no, the rain referred in the poem is not a heavy downpour. Instead, it is soft and gentle. बिल्कुल soft और gentle rain है. There is nothing like heavy. Okay. Next. एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है that who are the darling dreamers of the in this poem? Darling dreamers कौन है? As I told you, darling dreamers are the kids of means जो इसमें मदर डिस्क्राइब की गई है, they are the poet and his siblings. ठीक है, वो लोग हैं. एंड एक बहुत ही अच्छी चीज है that the poet is reminded of his mother and his जो उसकी किस मेन जो थॉट है वो किस चीज का था उसको, is the thought of his mother and his siblings. उसकी मदर का जो लव है he is reminded of that. तो ये आपकी पोएम है एंड in this poem the power of the nature, power of the beauty of the nature is described कि किस तरीके से आपको नेचर जो है वो किसी भी तरीके से आप उसको सोचें तो वो आपको इमेजिनेशन करके पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटी ऑफ द नेचर. वो आपको किसी भी तरीके से आपके अंदर कोई भी फीलिंग अराउज कर सकती है. दैट मे बी ऑफ द हैप्पीनेस और इट मे बी ऑफ द सैड मूड. तो इस पोएम में जो पोएट है हमारा ही was reminded of his past memories और उसके द्वारा उसने बहुत अच्छे से हमें डिस्क्राइब करके बताया है how the rain and rain is nature, how the rain is powerful, how much powerful is that और किस तरीके से वो हमें इम्पैक्ट कर सकता है.